گزشتہ 2-3 روزوں سے میں پٹنہ میں ہوں، اور چونکہ اسی سال اکتوبر یا بلکہ اس سے پہلے اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، تو میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کے سوالات کیا ہیں، کہ مسلمانوں کی ترقی کے جو سوالات ہیں، کیا واقعی مسلمان اس ریاست میں ترقی یافتہ ہیں، یا مسلمانوں کے پاس کچھ مسائل ہیں جو حل طلب ہونا ہے، اور سیاسی جماعتیں ان سوالات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان زین شمسی صاحب ہیں۔ زین شمسی صاحب ہندوستان کی ان مشہور اردو صحافیوں میں سے ایک ہیں جو بلا جھجک لکھتے ہیں اور بے خوف و لومۃ لائم اپنی بات کو لکھتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، اور ان دنوں منگیر کے گرلز کالج سے وابستہ بھی ہیں۔ شمسی صاحب، آپ کا انصاف نیوز آن لائن میں خیر مقدم ہے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات جو آنے والے ہیں اس میں مسلمانوں کے سوالات کیا ہیں؟ بیسیکلی آپ نے ٹاپک، چونکہ آپ بہار میں ہیں اور اس لیے آپ بہار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مجھ سے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب سوال ہوتا کہاں ہے؟ اب مسلمانوں کے سوال ہوتے کہاں ہیں؟ اور جو سوال ہوتے ہیں ان کا جواب تو کبھی ملتا نہیں ہے۔ مسلم کمیونٹی کہا جاتا ہے کہ پورے بھارت میں بہار کے جتنا سیاسی فہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب جب الیکشن آتا ہے بہار کا فیصلہ سب سے سٹیک ہوتا ہے، لیکن بہار کے مسلمان کریں تو کیا کریں؟ اگر وہ ایک طرف ہو کر بھی کسی کو ووٹ دے دیں تو وہ جیت نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں، چاہے وہ تیجسوی یادو ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا نتیش کمار ہے، کیا ان کے لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں؟ پچھلے انتخاب میں بھی آپ دیکھیے الیکشن میں تو مسلمانوں نے ایک طرف ہو کر تیجسوی کو ووٹ دے دیا، لیکن تیجسوی کے ووٹ کہاں چلے گئے جو وہ ہار گئے؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ مسلمان کی جواب دہی کس پہ بنتی؟ شمسی صاحب، میرا یہ کہنا ہے کہ میں دیکھتا ہوں جو سیاسی جماعتیں ہیں، یا میں گزشتہ 2-3 دن میں کئی لوگوں کے انٹرویوز کیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں خود مسلمانوں سے جو ملاقات کیا ہوں میں، ان کے پاس مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوئی سوالات نہیں ہے یا معلومات نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف رپورٹیں جو آ رہی ہیں، جو اگر کوئی بڑی رپورٹ تو مسلمانوں فوکس سے تو نہیں بنتی ہے، جیسے ہائر ایجوکیشن کی رپورٹ ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ بہار کا جو علاقہ ہے، کٹیہار سیمانچل کا جو علاقہ انتہائی پسماندہ ہے، وہاں ڈراپ آؤٹ کی شرح بہت زیادہ ہے، اردو اساتذہ بحال نہیں ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں اکنومک کی تو مضبوطی بہت کم ہے، جو ابھی ذات کی دم سروے رپورٹ آئی ہے، لیکن ان سوالات کو میں دیکھتا ہوں سیاسی موضوع بحث نہیں بن رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پارٹیکولرلی اگر آپ کہیں کہ مسلمان یہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں، میرے خیال سے یہی سوال آپ کا ہے جی کہ مسلم یہ اپنے جو مفادات ہیں اس کو کیوں نہیں سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے کہا ڈراپ آؤٹ، یا جیسے آپ نے کہا کہ سیمانچل، بیسیکلی دیکھیے ایک چیز اور ہے کہ جب سیاست بدلتی ہے تو بہت ساری چیزیں بدل گئی۔ دیکھیے جمہوریت کیوں پسند ہے لوگوں کو؟ کیونکہ جمہوریت میں سماج جو ہے وہ سیاست کو متاثر کرتا ہے، لیکن یہاں اب جو پچھلے کئی سالوں سے دیکھا گیا کہ سیاست نے سماج کو بدل دیا اور یہ ایک خطرہ ہے۔ تو اب اس میں الگ الگ کمیونٹی ہیں، جیسے سروے ہوا، آر جے ڈی نے اس پر بہت یہ کیا، کانگریس نے بھی کہا کہ نہیں ذات کا سروے ہونا چاہیے، ہوا بھی ہے نا، لیکن وہ چیزیں کہاں رہ گئی؟ دوسرے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت کم مسلمان کی بات، تو ابھی وقت ووٹ کا بھی معاملہ سامنے ہی ہے نا۔ تو جب تک مسلم کمیونٹی کے وہ افراد جو اپنے آپ کو سماج کے اوپر لیول پر اعلیٰ درجے پر رکھتے ہیں وہ کوئی ایجنڈا نہیں بنائیں گے، تب تک سرکار یا کوئی پارٹی کیوں سنے گی؟
उनको लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी कि मुस्लिम तो हमें वोट देंगे ही। जी 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 जी। और एक पार्टी है जो जानती है कि तो देंगे ही नहीं। बीजेपी है। तो सवाल ये है कि एक तरफ आप बगैर कोई सवाल पूछे, बगैर कोई एजेंडे के साथ एक तरफ वोट कर रहे हैं, जी जी, आप दूसरी तरफ आप एक पार्टी को आप अपना दुश्मन बना रहे हैं। तो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। पॉलिटिक्स में और खासकर माइनॉरिटीज को हमेशा बहुत कॉन्शियस आना पड़ता है अपने मुद्दे पे जी कि मुझे आप ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, चाहे सामने कोई भी पार्टी हो। तो बिहार में कभी ऐसा शुरू में हुआ, उर्दू के लिए लोगों ने जी, लड़ाई लड़ी गुलाम और साहब उसमें जो है जीत हासिल हुई। जी। लेकिन आप देखते हैं, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि मैं जो अखबार देखता हूँ उसमें एक्शन कमेटी फला कमेटी बनती है, लेकिन उनके पास कोई मुतालबा नहीं, कोई विजन नहीं है। सवाल है कमेटी बनती है, जी जी फिर ये खबर तो आती नहीं कि वो कमेटी का क्या हुआ। जी जी, सवाल ये है कि पब्लिक और सरकार के बीच में की जो कड़ी है जी वो कड़ी कहीं खो गई। कौन दोनों को आमने सामने करे? तो अब आप देखिए कि मुहिब्बे उर्दू, जी जी फला उर्दू, मतलब ढेर सारा आपको मिलेगा, जी लेकिन उनका काम देखेगा तो बस वो अखबार के पन्नों पे। जी जी, तो उस यही वजह है कि आज प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक जी उर्दू की हालत खस्ता है। मतलब वैकेंसी है भी। अब देखिए 100 सीट आई, ठीक है, उर्दू पढ़ो। उसमें SC ST को देना है आपको, जी। क्योंकि वो रूल है। जी वो सीट तो खत्म हो गई क्योंकि मिला ही नहीं कोई, जी तो उतनी सीट तो अपने आप कम हो रही है। जी अब वो 3 बार होगा तो फिर उसको जनरल में लाया जाएगा, फिर इस तरह से। जी जी, तो ये सारी चीजों को कौन देखेगा? आप इलेक्शन ही तो एक ऐसा वक्त है जब आप अपना डिमांड रखेंगे। आप डिमांड ही नहीं रखेंगे तो दूसरे क्यों आपकी तरफ उम्मीद की नजर से देखेंगे, बोलेंगे ठीक है। लेकिन शम्स साहब मैंने देखा है कि कई लोगों से मुलाकात के दौरान कई लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं मुस्लिम लीडरशिप। बोलते नीतीश कुमार अगरचे RSS बीजेपी के साथ थे, लेकिन उन्होंने फ़िक़ा परस्ती को रोक रखा है। अभी हाल ही में जो जमुई में जो राइट हुआ उसकी मिसाल पेश करते हैं कि मुस्लिम अहम शख्सियात के, भाई वहाँ राइट हुआ कि वहाँ पर मुसलमानों के घर नहीं तोड़े गए जैसे यूपी में तोड़े जाते हैं। तो एक तरह से नीतीश कुमार कहते हैं नरम गोशा नहीं, वो पाया जाता है। देखिए नीतीश लेकिन क्या कुमार, वाकईत नीतीश कुमार ने फ़िक़ा परस्ती को रोक रखा है? नीतीश कुमार जिस सियासत से उठे हैं तो जी। जाहिर सी बात है कि वो नफरत की सियासत नहीं थी। जी वो एक छात्र आंदोलन से उठे और अपनी पार्टी बनाए, उनके साथ रहे। वो एक नजरिया जो है वो उनका हावी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रोक दिया और फ़िरका परस्ती और ये बहुत सारी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते भी काम आती हैं। जी बिहार में ये भी देखा गया कि राइट नहीं हुए या जहाँ होने वाले थे वहाँ रोक दिया गया, ये सब हुआ। लेकिन समाजी स्तर पर जी RSS या जो प्रोपेगेंडा एजेंट है वो तो काम करते ही रह रहे हैं। जी वो हर जगह आपको अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो जब हवा ही वो चली हुई है तो बिहार को आप ये नहीं समझ सकते ठीक है अभी रुका हुआ है, अभी इलेक्शन आएगा। अभी देखिए वो प्रशांत किशोर भी हैं। जी तो जैसे आप दिल्ली का ले लीजिए कि कांग्रेस अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, तो ये सब तो बिखर जाते हैं ना। जी और जो वो सियासत है वो जुड़ रही है। जी, आपने चूंकि प्रशांत किशोर का जिक्र कर दिया है तो मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से उभर रहे हैं, कहा जाता है कि बिहार की संसद में मुस्तकबिल हो सकते हैं, क्या मुसलमानों का जो सोसाइटी है उनसे प्रशांत किशोर से बातचीत करके वे अपने एजेंडे से वाकिफ कराएंगे? करना चाहिए या फिर उसको हम कर दें कि भाई शरीर ममनुआ है बीजेपी का? नहीं, अब देखिए जो मिजाज है मुसलमानों का, बीजेपी का एजेंट, अब वो तो ओवैसी भी बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। जी जी, वो तो केजरीवाल भी कहा जाता है। इस वक्त कांग्रेस भाई, को मतलब अगर वो बीजेपी का एजेंट है, जी जी ठीक है, केजरीवाल बीजेपी का एजेंट था, जी तो आपने उसको इंडिया में शामिल क्यों किया? जी और जब
अब ये आप दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो ये मुसलमानों में भी ये आया कि वैसी वोट कटवा है, तो कांग्रेस क्या थी? जी जी सवाल वो नहीं है कि कौन एजेंट है कौन क्या, सब लोग को अपनी सियासत चाहिए। अब मुसलमानों का क्या, मुसलमानों की इस माने में आप तारीफ कर सकते हैं कि ये मुस्लिम ही कम्युनिटी है जो यादव को भी अपने से ऊपर ले गई, मायावती को ऊपर ले गई, तृणमूल कांग्रेस को ऊपर ले गई। सबको तो मुसलमानों ने ही बनाया, लेकिन बहुत बड़ा अलमिया है कि किसी ने मुसलमानों को नहीं बनाया। तो उसकी वजह से ये है ना कि आप अपना एजेंडा ही नहीं रख पा रहे, और जब ये बात होती भी है तो आपके अपने अंदर ही कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ मैं जाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा। एक बार फिर हम लौट रहे हैं उर्दू के सवाल पे कि जो क्या बिहार में एक बार फिर गुलाम सबर जैसी तहरीक की जरूरत है बिहार में? हाँ देखिए, उस तहरीक के लिए किस तरह के अल्फाज को आना चाहिए? देखिए जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था और बिल्कुल, तो मैं प्रोफेसरों को और जो कॉलेज से जुड़े हुए लोग थे उसका बहुत क्रिटिसाइज करता था। फिर मैं इस प्रोफेशन में आया और अंदर से जो मैं देख रहा हूँ तो हैरत भी होती है और बेहद अफसोस की बात है कि जब हम लोग दिल्ली में जेएनयू में या एएमयू में इस बात की लड़ाई लड़ते थे कि बिहार के स्टूडेंट जो उर्दू के होते हैं उसकी वजह से ही जेएनयू और एएमयू चल रहा है। एक बार मैं अपने प्रोफेसर बेचारे मर गए, डेथ कर गए, नसीर अहमद खान, उनसे मैंने कहा था कि सर बड़ा अलमिया ये है कि बिहारी अगर उर्दू पढ़ रहा है तो आप लोग कहते हैं उर्दू खराब हो रही, और उर्दू नहीं पढ़े तो उर्दू खत्म हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं, खत्म हो या खराब? लेकिन जब मैं इसमें आया इस प्रोफेशन में तो मैं वाकई देख रहा हूँ कि छोटे लेवल से तो छोड़िए, ऊपर के लेवल एमए पीएचडी के लोग एक पैराग्राफ ठीक से नहीं लिख पा रहे। तो ये कौन इसका जिम्मेदार था? इसका कौन है जिम्मेदार? घर के भी लोग अब उर्दू जो घर में जो मादरी जबान आप कहते हैं, तो वो मादरी जबान अब कहाँ जा रही है? यानी घर में भी लोग नहीं बोल रहे हैं, तब तो उनके बच्चे नहीं बोल पा रहे या नहीं लिख पा रहे हैं। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि शुमाली हिंद में उर्दू का खत्म होना उतना बड़ा अलमिया नहीं होगा, लेकिन उर्दू के खत्म होने से दीन की समझ में बहुत बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि शुमाली हिंद में लोगों ने इस्लाम को उर्दू से ही सीखा, और ये एक बहुत ही खतर इस तरफ जा रहा है। तो आप सिर्फ मदरसे पर डिपेंड होकर के उर्दू को नहीं बचा सकते। आपको प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज सब जगह देखना होगा कि कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर टीचर नहीं है। अब आप देखिए कि बड़े बड़े मुस्लिम तंजीमें हैं, अच्छे खासे उनके पास पैसे भी हैं, फंड भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश की कि मैं अपने ही फंड से टीचर दे दूं किसी उर्दू स्कूल में? जी। तो जब आप भी नहीं कर रहे हैं कोशिश, तो गवर्नमेंट क्यों करे, सरकार क्यों करे? मेरा सवाल है कि उर्दू को लेकर किस तरह पे काम करने की जरूरत है? देखिए उर्दू को सबसे पहले तो देखिए उर्दू अकादमी है, जी उर्दू डायरेक्टरेट भी है, गवर्नमेंट का है, और खुदाबख्श लाइब्रेरी है। जी जी। बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे कि इसमें न कोई सेक्रेटरी है, न कोई उर्दू अकादमी में किसी से। अभी जैसे आपने नीतीश कुमार की हुकूमत है, जी जी, तो आखिर इन सब जगहों पर जो उर्दू के बड़े इदारे हैं, वहाँ आप कोई मुस्तकिल चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे, सेक्रेटरी क्यों नहीं? जी। तो नहीं बना रहे हैं, तो फिर ये आप कहीं नहीं देखिएगा कि नीतीश कुमार से कोई वफ्द मिला और उसने ऐसा किया, डिमांड की। देखिए जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको कोई क्यों देगा? सिर्फ इसलिए कि आप उसको वोट, वो तो जानते हैं कि वो आप वोट भी उसी को देंगे। आपको देखिए कि कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी हिंदू की कोई भी कम्युनिटी अपने अपने मफाद के लिए वोट करती है। आप क्यों नहीं करते? आप देश को आपने बचाया, आज भी बचा रहे हैं,
आज भी आप उतने ही देशभक्त हैं जैसे पहले थे। जी। तो आप हाशिए पर क्यों चले जा रहे हैं? हर पार्टी आपको हाशिए पर रख रही, कौन सोचेगा इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू और इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर। हम बिहार के मुसलमानों की सियासत के हवाले से आइंदा भी गुफ्तगू करते रहेंगे। मैं एक बार फिर अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, किया है, तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी करें और हमें मुफीद मशवरों से नवाजें भी। और इसी तरह हम आपके लिए हम शख्सियात से बात करेंगे ताकि उनके ख्यालात को आपके सामने आ सके। शमसी साहब, आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।